जी कॉल अटेंशन पे आ जाएं जी आइटम नंबर 2 नवीद कमर साहब टू मूव आइटम नंबर 3 सॉरी एक मिनट नवीद साहब एक सेकंड ये कोई नहीं आखिरी पेज भी कर दिया जी नवीद साहब कॉल अटेंशन जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Sir, I beg to invite attention of the Minister for Power to a matter of urgent public importance regarding drastic change in net metering policy for solar consumers and decision to propose an 18% tax on solar panels, causing grave concern amongst the public. जी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्टर फॉर स्टेट जी डॉक्टर साहबा थैंक यू सर डॉक्टर शजरा मनसब साहब सर ये 18% टैक्स जिसके बारे में कहा गया ये बजट में आया था उसके बाद इसको रिवाइज कर दिया गया एंड इट्स बीन ब्रॉट डाउन टू 10% टैक्स इसके अलावा जो नेट मीटरिंग के उसमें चेंज किया गया था पहले तमाम कंज्यूमर्स के लिए उसको रखा गया था बट आफ्टर रिविजन now it does not apply to the consumers who are already तो उनका जो पहले consumers हैं उनकी जो मुद्दत है मियाद उस पे अप्लाई नहीं करेगा ये अब सिर्फ नए कंज्यूमर्स पे अप्लाई करेगा और इसका मकसद ये था कि जो पहले नेट मीटरिंग पॉलिसी होती थी जिसमें कि यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट होती थी और उसको पावर जो परचेज प्राइस थी उस पर लिया जाता था तो जो दूसरे सार्फिन थे जिनके पास के सोलर नहीं था ये सारा बोझ उनके ऊपर पड़ रहा था तो इसको एडजस्ट करने के बाद अब उनसे जो सरप्लस है वो एनर्जी परचेज प्राइस पे लिया जाएगा जिससे कि इस तरीके से कि एडजस्टमेंट हो जाएगी कि एक इक्विटेबल जो है बोझ तमाम सार्फिन पे पड़े और सिर्फ उन सार्फिन पे जिनको कि जो कि सोलर नहीं ले सकते या नहीं अफोर्ड कर सकते उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ ना पड़े तो इस वजह से एडजस्टमेंट की गई है लेकिन वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी जिनका मुआहदा हुआ है उनके ऊपर उनके मुआहदे की मुद्दत तक ये नहीं होगा जी नवीद कमर साहब एक सवाल कीजिए I wish the concerned ministers, both Minister for Power and Minister for Finance were here so that whatever they say on the floor of the House, we can hold them responsible for that. So today, you know the country is going through a crisis of energy and the world is looking towards indigenous resources. Whereas the government at the Prime Minister's level professes to be pushing for alternate energy as well as both solar and wind. The government itself is actively discouraging move away from clean energy which is cheaper and which does not depend on imported fuels. And yet we at every stage keep on discouraging indigenization of our energy resources and are somehow addicted to expensive imported fuels which are dirty as well as sir, especially in the present crisis as you all know as we are debating that we cannot afford this imported price and yet we don't want to encourage clean energy. It is not enough to say okay, the people who have older contracts we will honor them till why do you have to honor all the IPP's old contracts but you cannot honor all the contracts with your own consumers for a clean cheap energy source. So my question from the Honorable Parliamentary Secretary here is that is this not an anti-solar policy? Is this not discouraging people from solarizing? And is there an assurance that while it is being actively professed that they will impose further taxes on solar panels, that government will not do that, at least not until, not within the next budget that is coming up in a couple of months.
ख्वाजा आसिफ साहब जवाब देना चाह रहे हैं तो तशरीफ रखें। जी ख्वाजा साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, while I conceptually agree with my brother Naveed Qamar, we have both held this portfolio during very dire times, you know, he would agree with me. But ये बड़ा नाजुक सा बैलेंस है जो रखना पड़ रहा है हमें, और मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ उनकी बात से, लेकिन वी आर इन ए catch-22 पोजीशन कि हमने वो सारे ऑनर भी करने हैं एग्रीमेंट्स जो 90s में हुए, उसके बाद अर्ली 2000s में हुए, और मेरा ख्याल है सम ऑफ दीज एग्रीमेंट्स आर गोइंग टू एक्सपायर इन नेक्स्ट 2-3 years बाई 2029, कुछ 2030s में चले जाएंगे। तो हमारे लिए बिल्कुल आइडियल यही है कि हम इंडिजनाइज करें और सोलर के ऊपर जाएं और चीपर जो बिजली के रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनको अडॉप्ट करें। पर हाथ पांव बंधे हुए हैं उन एग्रीमेंट्स की वजह से। और दूसरा ये है कि अंडरस्टैंड करेंगे नवीद कमर साहब भी कि वहाँ तो कैपेसिटी पेमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं, और विच इज़ एक्चुअली ह्यूज सोर्स ऑफ ब्लीडिंग फॉर आवर नेशनल एक्सचेकर, कि उसके अलावा कोई जो है सल्यूशन नहीं है। कुछ देर पहले कुछ नेगोशिएट हमने किया था और कुछ उसमें से कुछ रास्ता निकाला था, लेकिन उस तरह उतना इम्पैक्ट नहीं है, मैचिंग इम्पैक्ट नहीं है जितनी जो है इस वक्त हमारी वहाँ पे ऑब्लिगेशंस हैं, उनको किसी न किसी तरह जो है ना वो हमें करना पड़ता है। उसके लिए आई विश जो नवीद कह रहे हैं वो चीज़ जो है हम कर सकें, अदरवाइज वी आर बाउंड बाय द कमिटमेंट्स व्हिच वर मेड 25, 30, 35 years back. Thank you. शाजिया मरी साहबा नॉट प्रेजेंट। सहर कामरान साहबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। ये एक बहुत अहम इशू है कि हुकूमत की पॉलिसीज़ के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। वो हुकूमत जो कि सोलर रेवोल्यूशन के नाम के ऊपर आई और लोगों से ये वादे किए कि जो है वो सोलर रेवोल्यूशन लेकर आएगी, पिछले साल यानी दिसंबर 2025 के अंदर जो पॉलिसी थी नेट मीटरिंग की, वो चेंज हो गई नेट बिलिंग के ऊपर, जिससे जो प्रोज्यूमर्स थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उनको वो जो सोच रहे थे कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी और ये सोच रहे थे कि उसकी कुछ रिकवरी भी हो जाएगी, क्योंकि साइकोलॉजिकली जो कंज्यूमर है या प्रोज्यूमर है वो इतना ज़्यादा डिप्रेस था, क्योंकि जब बिजली नहीं आ रही, घंटों घंटों लोड शेडिंग हो रही है, एक तरफ कैपेसिटी चार्जेस की बात होती है, दूसरी तरफ जो है बिजली की फरहमी मुमकिन नहीं थी। अभी क्या हुआ है अप्रैल के अंदर? जी मैं सवाल बहुत अहम है मुझे अब ये हुआ है कि अब जो है 0 यूनिट, यानी अब जो बिल्स आए हैं अप्रैल के अंदर उनमें ये मौसूल हुए लोगों को, उसके अंदर ये कोशिश की गई है कि जो क्रेडिट है वो मिले ही नहीं, उसको ज़ीरो कर दिया जाए। कहीं फिक्स चार्जेस है, कहीं मीटर रेंट्स है। तो ये जो मैं समझती हूँ कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, स्पेशली इस वक्त में जबकि एनर्जी क्राइसिस है, जिसमें आपके जो सोलर्स हैं उसी ने सस्टेनेबिलिटी दी है, फॉरेन एक्सचेंज बचाए। ऐसे वक्त के अंदर गवर्नमेंट इस किस्म की डिजास्टर्स पॉलिसी लेकर आ रही है कि यानी किस बात के ऊपर जी सवाल यही है मेरा कि हुकूमत की पॉलिसीज़ के अंदर जो कंसिस्टेंसी नहीं है उससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट हो रही है पब्लिक। तो ये जो गलत वादे करते हैं लोगों से और किस तरह से पॉलिसीज़ बदलते हैं, उसका नुकसान जो हो रहा है उसका मुदावा करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। ये मैं कहूँगी कि ये वज़ीर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने जो बातें भी की हैं कि जी कैपेसिटी चार्जेस हैं, अब उनको रिव्यू करें, आवाम को रिलीफ दें। इस टाइम पे आपको सोलराइजेशन और जो ये डाइवर्सिटी है यही आपको सस्टेनेबिलिटी दे रही है, जबकि ग्लोबल जो है वो एक तो जो फिर आपने एक मिनट ये जो 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट जी आ गया सवाल जी। डॉक्टर शजरा साहब तकरीर नहीं। थैंक यू सर। सर नंबर 1 जो डेफिनेटली हुकूमत ने सोलर को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई थी एंड दिस इज़ कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर बाकी ममालिक को देखें तो वहाँ भी यही होता है कि पहले पॉलिसीज़ ज़रूर बनाई गई कि इनकरेज किया जाए, हम सोलराइजेशन को, क्लीन एनर्जी को हम इनकरेज करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। हमारी जो लेटेस्ट नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन
जो हमने अभी जमा कराई हैं उसके अंदर हमने नो न्यू इम्पोर्टेड कोल का दिया है हद और हम इंशाल्लाह ताला कोई नए इम्पोर्टेड कोल को अब पावर प्लांट्स के लिए नहीं यूज़ कर रहे बल्कि हम अपने इंडिजिनस कोल को ही यूज़ कर रहे हैं अभी तक और हम क्लीन एनर्जी की तरफ डेफिनेटली जा रहे हैं। जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर ने इन्वेस्टमेंट का कहा तो हम एक बैलेंस ज़रूर क्रिएट करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉट द कॉन्ट्रैक्ट्स। जिनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स उसी तरह चलेंगे, जिनके नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको उनकी इन्वेस्टमेंट भी उनके लिए फ़ायदामंद अभी भी है। ओनली द टाइम पीरियड हैज़ चेंज्ड स्लाइटली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले 2 साल के अंदर नेट मीटरिंग की पॉलिसी के तहत उनको वापस मिल जाता था तो अब जो नई पॉलिसी है उसके तहत 3.7 ईयर्स। सो डेफिनेटली इट्स बिकम स्लाइटली लॉन्गर बट अभी भी उनके लिए फ़ायदामंद है ये। सो द पॉइंट इज़ कि एक बैलेंस हमें डेफिनेटली क्रिएट करना पड़ रहा है फॉर दोज पीपल, फॉर दोज कंज्यूमर्स हु डू नॉट हैव सोलर। बट इसमें कोई पॉलिसी की जो है वो नहीं है, इसमें यही पॉलिसीज़ शुरू में हमने इनकरेज किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह के लोग सोलर की तरफ जब जाना शुरू हो गए हैं, पीपल डू रियलाइज एंड वी आर स्टिल इनकरेजिंग सोलर, वी आर स्टिल इनकरेजिंग क्लीन एनर्जी बट वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। उसकी वजह से ये नई पॉलिसी आई। ठीक है, इख्तियार बेग साहब सवाल कीजिए। खबर होना हो तो चैनल। देखिए, बात ये नहीं है कि आप अपनी ओन पॉलिसी से, ये तो आपने यू टर्न सीएनजी में भी लिया है, यू टर्न कैप्टिव पावर जनरेशन यूनिट में भी हुआ, यू टर्न सोलर पावर में भी हुआ, लेकिन इसमें वो गरीब लोग हैं जिन्होंने बालियां बेच बेच के सोलर लगाई थी, जिन्होंने कर्जे लेके सोलर लगाई थी। 27 रुपए में जब आप उनका खरीद रहे थे, अब आप 9 रुपए पे लेने के लिए आ गए और उनका इन्वेस्टमेंट रिटर्न पीरियड आप डिसाइड कर रहे हैं, 10 साल या 5 साल। पहले ये 1.5 साल होता था। भाई मेरे पैसे हैं, उसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न मैं तैयार करूंगा ना, मैं बताऊंगा कि ये 1 साल में मुझे इसका रिटर्न मिलना चाहिए या 1.5 साल में। तो इस लिहाज से मसला ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा 8000 मेगावाट ग्रिड पे है। सवाल कीजिए जी सर, मेरा सवाल यह है कि जो जिनके लाइसेंस ख़त्म हो रहे हैं वो 7 साल के जो लाइसेंस हैं वो तकरीबन अप्रैल मई में ज़्यादातर के एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि 7 साल पूरे हो गए और 7 साल की मुद्दत जब से लाइसेंस देना शुरू हुआ वो अप्रैल और मई में ख़त्म हो जाएगी। या तो इन लोगों को भी आप कंटिन्यू करें मजीद, नहीं तो ये तो लोग ड्रॉप हो जाएंगे, फिर ऑटोमेटिकली 9 रुपए के आपके उसमें आ जाएंगे नेट में। ये तो मैं समझता हूँ कि आप अभी तक सवाल नहीं कर सके। सर मेरा सवाल है कि क्या उन लोगों को जिनके लाइसेंस जो हैं वो अप्रैल मई में 7 साल मुकम्मल होने के बाद एक्सपायर हो रहे हैं, उनको वही पुरानी रेट्स पर तजदीद किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है? जी डॉक्टर शजरा साहब। थैंक यू सर। सर जैसे कि मैंने कहा कि वो लोग जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जितनी भी मुद्दत के हैं उस मुद्दत तक उनके लिए पुरानी पॉलिसी ही है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे तब उनके ऊपर नई पॉलिसी आयद हो जाएगी। और हैविंग सेड दैट, ये अभी भी उनको फ़ायदा ही होगा, अभी भी उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। अभी भी लोग सोलराइजेशन की तरफ जो जा रहे हैं उनको नंबर 1 दे यूजिंग क्लीन एनर्जी, सारा दिन उनको सस्ती बिजली भी मिल रही है, अभी भी उनको पावर उसके तहत उनका ख़रीदा जा रहा है और उनको उनकी इन्वेस्टमेंट अभी भी डेफिनेटली थोड़े लंबे पीरियड के लिए बट अभी भी उनको फ़ायदा मंद ही हो। ठीक। मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स।